بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 18 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے شکار کے لیے سدھائے ہوئے کتے اور تیر کا بیان۔ تو پہلے ہم یہ والا باب پڑھیں گے، یعنی شکار وغیرہ کے لیے کتے کا پالنا۔ ہم حدیث پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع تقص من أجره كل يوم قيراط۔ تو دیکھیے یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کتا پالے گا تو ہر روز اس کی اجر میں سے ایک قیراط کے برابر کم ہوتا رہے گا، سوائے اس شخص کے جو کتا پالے چوپاؤں کی حفاظت کی خاطر یا شکار کی غرض سے یا کھیت یا باغ کی حفاظت کے لیے۔ تو دیکھیے یہاں پر فرمایا ان تقوسا من اجرہ کل یوم قیراط۔ یہاں پر دوسری روایات میں یہ ذکر کیا گیا ہے قیراطان کا لفظ، یعنی 2 قیراط۔ تو اس کی مختلف توضیحات ذکر کی گئی ہیں، جس میں سے چند یہ ہیں کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 قیراط کا ذکر فرمایا اور کبھی 2 قیراط کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح کلاب کے متعلق بھی مختلف روایات ہیں، یعنی کلاب مختلف ہوتے ہیں، کچھ جو ہے کم نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں یعنی قلیل ضرر ہوتے ہیں، اور کچھ زیادہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو پہلے جو کم نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے 1 قیراط کا نقصان بتایا اور دوسرے میں 2 قیراط کا نقصان بتلایا۔ اسی طرح تیسری جو توجیہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 2 قیراط بیان کرنے والا راوی ایک زائد چیز کا ذکر کرتا ہے اور زائد چیز بتانے والا کم بتانے والے کی نسبت قبولیت کا زیادہ مستحق ہوتا ہے، اس لیے 2 قیراط کی روایت جو ہے ان کو ترجیح دی جائے گی۔ اور چوتھی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ قیراطان والی روایت جو ہے وہ مدینہ پر محمول ہے، اور قیراط یعنی جو 1 قیراط والی ہے وہ غیر مدینہ پر محمول ہے، اس لیے یہاں پر وغیر ذالک من التوجیحات یہ ذکر کی گئی ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيمة۔ تو دیکھیے یہاں پر حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتے بھی جماعتوں میں سے ایک جماعت نہ ہوتے، یعنی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق نہ ہوتے، تو میں ان سب کو ہلاک کرنے کا حکم دے دیتا، بس اب صرف کالے کتوں کو ہلاک کر دو اور باقی کو چھوڑ دو، یعنی جس میں سفیدی نہ ہو۔ پھر آگے دیکھیں فرمایا لولا ان الکلاب امۃ من الامم، تو یہ سب تمہاری مانند امتیں ہیں یعنی جماعت ہیں، یعنی ان جماعتوں کو بھی اللہ نے بعض مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اب ان کو مٹا دینا بھی منشاء فطرت کے خلاف ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے قتل عام کا حکم نہیں فرمایا، ہاں نہایت کالے کتے کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ کالے کتے جو ہیں وہ عضو الحدیث کے شیطان ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ ابھی حدیث دیکھیے، وبه قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال امر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالاسود۔ تو دیکھیے یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت جنگل سے کتوں کو لے کر آتی تو ہم اس کو مار ڈالتے
लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मार डालने से मना फरमा दिया और फरमाया सिर्फ खालिस स्याह कुत्ते को मार डालें। तो देखिए यहाँ पर स्याह कुत्ते के मुतालिक ये हुक्म है, जो बाल और कुत्ते हैं ना, यानी हुक्म आम नहीं है, सिर्फ स्याह कुत्ते को खास किया गया है यहाँ पर। अब हम अगला बाब देखते हैं। अगला बाब है बाबू की सईदी, यानी कि सुधाए हुए कुत्ते और तीर से शिकार करने का बयान। तो देखिए सईद कभी मुसैयद के माना में इस्तेमाल होता है और कभी मसदरी माना में। यहाँ पर यही मुराद है, यानी कल्ब मुअल्लिम और तीर कमान वगैरह के जरिए शिकार करने के बयान में। तो देखिए ज़कात शरई की दो किस्में होती हैं, एक इख्तियारी और दूसरी इस्तिरारी। अब इख्तियारी जो है वो हिमाने मकबूज मानूस जानवर में होती है और इस्तिरारी जो है वो गैर मकबूज गैर मानूस जानवर में होती है, जैसा कि शिकार वगैरह। इसी तरह ज़कात इख्तियारी जो है वो तो खास है लब्बा और हलक के साथ, और ज़कात इस्तिरारी जो है वो मुतलक है जरा का, यानी वो बदन के किसी भी हिस्से में हो, मतलब ये कि मुतलक खून बहाना मुराद है। ज़कात इस्तिरारी जिन आलात से होती है वो तीन है, उसमें एक है अलहिमान अलजहरे और दूसरा है धारीदार चीज और तीसरा है अलमुस्कल, यानी कि लकड़ी और पत्थर। तो इनमें से जो पहली दो चीजें हैं इनसे शिकार करना आइमा अरबा के नजदीक जायज है। तीसरी चीज यानी मुस्कल, इसके जरिए शिकार करना आइमा अरबा के नजदीक जायज नहीं है। इसी तरह अगर शिकारी कुत्ते को बिस्मिल्लाह पढ़कर शिकार पर छोड़ा और वो शिकार को पकड़ लाया लेकिन वो शिकार बगैर ज़िबा किए मर गया, तो इसका बिल इत्तिफाक खाना जायज है। लेकिन शिकारी कुत्ते की तालीम के सिलसिले में इख्तिलाफ है, यानी कौन सा कुत्ता शिकारी कहलाएगा, कौन सा कुत्ता शिकारी नहीं कहलाएगा, इसमें आइमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। क्योंकि गैर शिकारी कुत्ते का मुर्दा शिकार खाना बिल इत्तिफाक हराम है। इसी तरह यहाँ पर इमाम मालिक रहमहुल्लाह के नजदीक ये फरमाया कि कुत्ते के मुअल्लिम होने के लिए ये शर्त है कि इसको शिकार पर भेजा जाए तो वो चला जाए और रोका जाए तो रुक जाए। इसके अलावा इमाम मालिक के नजदीक कोई शर्त नहीं है, चाहे वो शिकार से खाए या ना खाए कोई हर्ज नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और इमाम अहमद रहमहुल्लाह के नजदीक उर्फ का एतबार है। अलबत्ता कल्ब मुअल्लिम की अलामत तीन शर्तों का पाया जाना ये मुतय्यन करते हैं, यानी एक शर्त ये है कि रोकने से रुक जाए, भेजने से चला जाए, और दूसरी शर्त ये है कि शिकार से ना खाए, और तीसरी शर्त ये है कि ये तजर्बा कम अज कम 3 मरतबा किया जाए। और इमाम शाफी रहमहुल्लाह का मजहब भी तकरीबन यही है। इसी तरह इमाम मालिक रहमहुल्लाह की दलील ये फरमाते हैं कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरसलता कल्बकल मुअल्लम व ज़करता इस्मल्लाहि अलैहि फकुल फ़इन अकला मिन्हु, यानी जब तुम अपने कल्ब मुअल्लम को सिखलाए हुए कुत्ते को अल्लाह का नाम लेकर छोड़ो तो इसको खाओ, यानी जो वो तुम्हारे लिए शिकार करके लाए उसको खाओ, अगरचे कुत्ते ने शिकार शुदा जानवर में से कुछ खा लिया हो। तो आगे फिर जमहूर की दलील फरमाई है। जमहूर अपनी दलील जो लेते हैं वो कुरान की आयत से इस्तिदलाल करते हैं और फरमाया फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, यानी इसमें से खाओ जो शिकारी कुत्ते ने तुम्हारे लिए पकड़ा हो, और जब कुत्ते ने इसमें से खा लिया तो मालिक के लिए शिकार का पकड़ना नहीं पाया गया। यानी फिर इसका मतलब ये है कि अगर इसमें से कुत्ते ने खुद खा लिया तो उसने खुद अपने लिए वो शिकार किया होगा, मालिक के लिए नहीं किया होगा। आगे जो इब्न अदी बिन हातिम की रिवायत जिक्र की गई है वो ये जिक्र की गई है क़ाला फ़इन्ना अकलल कल्बु फ़ला तअकुल फ़इन्नी अख़ाफ़ु अन यकूना इन्नमा अमसकुहु अला नफ्सिही, यानी अगर कुत्ता खा ले तो तू मत खा क्योंकि मुझे अंदेशा है कि वो इसको अपने लिए रोक रखा हो इसने। यहाँ पर इमाम मालिक रहमहुल्लाह की दलील का जवाब वो इस तरह देते हैं कि अबू सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत को ज़ईफ करार दिया है। इसी तरह अक्सर रिवायात में व इन अकला मिन्हु का लफ्ज मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर अगरचे जो अदी बिन हातिम की रिवायत जिक्र की गई है वो भी ज़ईफ जिक्र की गई है, लेकिन हदीस अदी बिन हातिम को तरजीह हासिल है वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने इस्तिदलाल की है कुरान की आयत को, और कुरान की आयत से इस्तिदलाल करना
वो ज्यादा तरजीह के लायक है, इसलिए अदी बिन हातिम की जो हदीस है वो असा है, उसको तरजीह दी गई है। इसी तरह यहाँ पर बाज उलमाए किराम ने हदीस अबी सालबा की ये तावील की है कि यहाँ खाने से मुराद ऐन शिकार के वक्त खाना, यानी ऐन शिकार के वक्त उस कुत्ते का खाना मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि इब्तदा में वो कुत्ता उस शिकार को मारकर फारिग होकर चला गया, फिर बाद में जब उस शिकार को वहां पड़ा हुआ देखा उस वक्त उसमें से खाने लगा, इसलिए इसका खाना नुकसानदेह नहीं है। अब हदीस की इबारत देखिए। वबी क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न ईसा क़ाल हद्दसना जरीर अन मंसूर अन इब्राहीम अन हम्माम अन अबी इब्न हातिम क़ाल सअलतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल्तु इन्नी उरसिलुल किलाब अल मुअल्लमता व तुमसिकु अलैया अफ़आकुलु क़ाल इज़ा अरसलतल किलाब अल मुअल्लमता व ज़करत अस्मल्लाहि फ़कुल मिम्मा अमसकना अलैका क़ुल्तु व इन कतलना क़ाल व इन कतलना मा लम यशरकहा कल्बुन लैसा मिन्हा क़ुल्तु अरनी बिल मिक़वाज़ि व उसीबु अफ़आकुलु क़ाल इज़ा रमैत बिल मिक़वाज़ि व ज़करत अस्मल्लाहि व अस्वाबा फ़खरका फ़कुल व इन अस्वाबा बिअग़ज़िहि फ़ला तअकुल। तो देखिए यहाँ पर हजरत अदी बिन हातिम से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मैं सुधाए हुए कुत्तों को शिकार की गर्द से छोड़ता हूँ तो वो शिकार को मेरे लिए पकड़ कर रखते हैं, यानी इसमें से खुद नहीं खाते, तो क्या मैं ऐसे शिकार को खा लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तूने शिकार पर सुधाए हुए कुत्ते को अल्लाह का नाम लेकर छोड़ा है तो तू इस शिकार को खा ले, जिसको वो तेरे लिए पकड़ कर रखे। मैंने अर्ज किया, अगरचे वो शिकार को मार डाले तब भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तब भी, बशर्त ये कि इसके शिकार में कोई दूसरा कुत्ता शरीक ना हो, यानी कोई ऐसा कुत्ता शरीक ना हो जो कि सिखाया हुआ ना हो या इसको छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह ना पड़ी गई हो। अदी बिन हातिम फरमाते हैं कि फिर मैंने दरियाफ्त किया कि मैं शिकार पर मेराज यानी बगैर फल के तीर, एक वजनदार चीज जिसमें धारी नहीं होती फेंकता हूँ, जो इसको जा लगती है, तो क्या मैं इसको भी खा सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तूने मेराज को अल्लाह का नाम लेकर फेंका और वो शिकार को लगकर इसके जिस्म को फाड़ दे तो तू खा ले, और इस तरह लगा जिससे वो फटा नहीं बल्कि चोट से मर गया तो मत खा। तो देखिए यहाँ पर फरमाया, कुल तू अरनी बिलमिराजी उसीबु अफ़आकुलु। तो यहाँ पर मेराज यानी तीर की तफसीर के बारे में थोड़ा सा इख्तिलाफ है, मेराज के बारे में इख्तिलाफ है। यहाँ पर इब्ने तीन फरमाते हैं कि वो असा जिसके सिरे में धारीदार चीज लगी हुई हो, यानी कि लोहा वगैरह, उसको मेराज कहा जाता है। और इमाम नबवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो एक भारी लकड़ी होती है या असा होता है जिसके सिरे में धारीदार चीज लगी हुई होती है, कभी सादा होती है बगैर धारीदार चीज के। बहरहाल हदीस में ये है कि अगर मेराज से शिकार किया जाए तो अगर शिकार को इसका धारीदार हिस्सा लगकर इसको जख्मी कर दिया है इसने तो फिर जायज है, वरना चौड़ाई की जानिब अगर लगे तो जायज नहीं है। इसी तरह बंदूक के यानी गन के शिकार की गुरमत पर जमहूर उलमाए किराम ने इसी हदीस से इस्तिदलाल किया है। हमारा यहाँ आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।